Hello class. So in this video we are going to know about the first theorem 1.1, which is Euclid's division lemma. So first of all, let's understand that what exactly a lemma is. So simply we could say that a proven statement which is used to prove other statement is called a lemma. So कोई भी एक ऐसा proven statement जिसकी मदद से हम दूसरे statements को prove करते हैं उसे हम lemma कहेंगे. So now let's come to the definition. And the definition is, given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying an expression which is a is equals to bq plus r, where 0 is equal or smaller than r and r is smaller than b. So इस definition में हमने ये देखा कि कोई भी positive integers उसके लिए एक यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करता है जो कि उसे जो सेटिस्फाई करेगा इस एक्सप्रेशन को. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ एन एग्जांपल. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम एक सिंपल डिवीजन मेथड लेते हैं, फॉर एग्जांपल वी आर डिवाइडिंग विथ 5 इन 98. सो हियर 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट हियर 5 and again you get here 45. So in that place 5 is considered as the as divisor and 19 is quotient and 3 is remainder. And 98 is dividend. So now 98 is A here and Q is quotient here and divisor, which is 5, is the B and 3, which is remainder, is actually R. तो ये तो बहुत ही सिंपल सा चीज़ था. आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे. एंड नाउ हम आगे की मेथड्स को देखते हैं. सो तब तक आप इसे नोट डाउन कर लो. So I hope that you have written. I'm going to read it. So now जो last time हमने expression देखा था, which is a is equals to bq plus r. So जो last time हमने division किया था, that was 5 divided by 98 और हमें quotient के फॉर्म में मिला था 90 और रिमाइंडर के फॉर्म में मिला था 3. तो अब इस डिफरेंट नंबर्स को हम इस एक्सप्रेशन पे प्रूव करने इस पे रख करके हम देखेंगे कि क्या इसके LHS और RHS इक्वल हो रहे हैं या नहीं. सो नाउ A is 98 and B, which is the divisor, is 5 and the quotient, that is 19, and the remainder, which is 3. Now let's solve it. So we could get 19 5s are 19 5 plus 3, and on the left hand side we have 98. So 95 plus 3 is equals to 98. तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, दे बोथ आर इक्वल्स, और यहाँ पर A इक्वल है BQ प्लस R की. सो नाउ अब हम देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है.
So what exactly Euclid's division algorithm is? So यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से हम किसी भी डिफरेंट नंबर्स का एचसीएफ पता करते हैं, विच इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे दैट व्हाट एग्जैक्टली एन एल्गोरिथम इज. सो वी कैन सिंपली से दैट एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप मेथड विच इज़ यूज्ड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो स्टेप बाय स्टेप मेथड का यूज़ करते हैं, that is called an algorithm. So यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से हम अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करेंगे. So first of all let's check that what exactly highest common factor is. So जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, so highest mean which is the greatest one, and common which exists in mutually, and factor means कि कोई एक ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं, that is called its factor. So now we are going to take two different numbers और हम उसका HCF पता करेंगे. So we took here 24 and 36. They both are different numbers और इनका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से. So first of all let's divide 24 with 36. So right over there we will get 24 1 times 24. So in that case अब हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अलावा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे. सो फर्स्ट चेक दैट E इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और क्या यहाँ पे R इज इक्वल्स टू 0 है या नहीं. तो अगर रिमाइंडर 0 आएगा, सो जिस नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 हो जाए, that will be our highest common factor. So now again we have to divide. First of all let's check. So this is 36 and B is 24, quotient is 1 and remainder is 12. So here remainder is not equals to 0. Okay, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, सो दैट्स वाई हम अगेन रिपीट करेंगे सेम मेथड. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड 24 with 12. So here we have 24 is equals to 0. So the highest common factor will be 12. Okay. So now हम देखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे हमारे पास 12 आया. तो क्या हम देखेंगे कि क्या 12, 24 और 36 दोनों को डिवाइड कर पा रहा है या नहीं. तो सिंपली हम देखेंगे दैट 12 एक ऐसा नंबर है जो सबसे बिगेस्ट नंबर है, जो हाईएस्ट नंबर है, जो इन दोनों के फैक्टर्स में आता है. सो दैट्स वाई 12 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड about the Euclid's division lemma and algorithm as well. So if you have any queries, please write down in the comment section below. Thank you so much. You may write.